Hello everyone. So this is the second part of the video of different integration 2022. ठीक है, तो इसमें हम 2022 मेंस के जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन सी दैट फर्स्ट पार्ट आल्सो, राइट? So let's start with this first question here. The first question is, let g is a function defined from 0 to infinity to r is a differentiable function such that this integration is equal to x gx upon e raised to x plus 1 plus c. Then for all x positive number, then which of the following option is correct? ये हमको चेक करना है. तो बेसिकली देखो g g डैश g प्लस g डैश g माइनस g डैश पे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करना है. तो फर्स्ट इफ यू हैव टू सॉल्व दिस, फर्स्ट आपको gx फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तब हाउ विल यू फाइंड द gx फंक्शन? ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. थोड़ा ऑब्जर्व करना है इसमें. देखो ध्यान से, just observe this. On the right hand side we have x upon e raised to x plus 1. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो what is the derivative of this? इसका आप ध्यान से देखो डेरिवेटिव क्या होगा. This is e raised to x plus 1 का होल स्क्वायर. e raised to x plus 1 into derivative of x is 1 minus x derivative of e raised to x plus 1 is e raised to x. करेक्ट? सो x upon e raised to x plus 1 का जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है, this is this e raised to x plus 1 minus x e raised to x. अब ये मैंने क्यों किया है, जो आप ध्यान से देखो, ये जो टर्म है this upon this is simply the derivative of x upon e raised to x plus 1. Correct? So now see, let's say, just for simplification, let's say if I consider fx is equal to x upon e raised to x plus 1. ठीक है? So now see, this integration will become x upon e raised to x plus 1, ये तो हो गया आपका fx into cos x minus sin x, cos x minus sin x plus this is gx and what is this thing is f dash x. You can see I have already written f dash x, so this is f dash x dx. This is equal to, you have x upon e raised to x plus 1 which हमने assume किया है fx. This is gx into fx, gx into fx और ये plus c. करेक्ट? ये आपके पास एक क्वेश्चन. एंड नाउ सी हियर, इफ यू इंटीग्रेट, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो आप ध्यान से देखना, वी हैव इंटीग्रल fx cos x minus sin x dx plus इंटीग्रल gx f dash x, this is equal to fx into gx plus c. हमारा एम क्या है? हमारा एम है gx फंक्शन फाइंड करना. ठीक है? सो नाउ सी, इफ आई स्टार्ट मैनिपुलेटिंग दिस सेकंड, इसको आप मैनिपुलेट कैसे करोगे, मतलब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो नाउ सी, आई कैन इजीली अप्लाई बाय पार्ट्स हियर, बिकॉज I can easily find what is the integration of this, what is the derivative of it. If I assume this is I assume first function और इसको हमने फंक्शन किया assume second function, मतलब बाय पार्ट्स लगा रहे हैं. ठीक है? So this will become integration of, just move this is integration of fx cos x minus sin x plus dx plus, अब हमने इसमें अप्लाई किया बाय पार्ट्स. तो जैसे आप बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे, फर्स्ट फंक्शन into integration of second, integration of f dash x which is fx, so this is fx minus differentiation of first, तो मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो गया, दिस इज g dash x into integration of second, मतलब दिस इज fx dx. दिस इज अवर fx gx plus c. ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह हमने कंसीडर नहीं किया. ठीक है? सो नाउ सी, on the right hand side we have fx plus fx gx, here also we have fx gx. अब आप ध्यान से देखो, अगर हमको ये डिटर्मिनेंट, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है इसको कैंसिल करवाना है. ठीक है? तो कैन वी से जो g dash x फंक्शन होगा, g dash x फंक्शन, इट विल बी इक्वल टू cos x minus sin x. तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और आपका इंटीग्रेशन बच जाएगा. ठीक है? सो कैन आई से g dash x फंक्शन विल बी इक्वल टू cos x minus sin x. So this is how you can get what is g dash x function. This is
g dash x function should be equal to cos x minus sin x, तो ये cancel हो गया and we have both the integration on the same are the same on the right hand side and left hand side. So this is how we can manipulate that g dash x is equal to cos x minus sin x. और the other way to solve this is आप ऐसा कर सकते हो डायरेक्टली डिफरेंशियल कर दो दोनों तरफ, तो जैसे आप डिफरेंशियल करोगे तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. दिस इज अनदर वे टू सॉल्व दैट दिस क्वेश्चन, राइट. So now we have got what is g dash x, this is equal to cos x minus sin x, ठीक है. So what is gx function now? Gx function will be equal to this is अच्छा अब हमको तो ये gx function डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक करना है तो हम चेक कर ही देंगे, वो तो डायरेक्टली हम चेक कर लेते हैं. what is gx function? Let's talk about gx function. Gx function is, इसको आप इंटीग्रेट कर दो. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x which is प्लस cos x और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. तो ये हमारा gx फंक्शन आ गया, ठीक है. अब क्या चेक करना है हमको? नाउ वी हैव टू चेक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर, ठीक है. सो लेट्स सॉल्व दिस नाउ एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं. gx फंक्शन इज डिक्रीजिंग, gx इज डिक्रीजिंग, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? g डैश x फाइंड करना होगा. g डैश हमारे पास सामने ही, सो बिटवीन 0 and 4 0 and pi by 4 क्या ये डिक्रीजिंग है? तो यू कैन सी हियर, ये देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x बिटवीन pi by 4. तो यू कैन सी दिस इज sin x, this is cos x, sin x is less than cos x. तो अगर sin x लेस देन cos x है तो g डैश x जो होगा 0 से pi by 4 के बीच में, 0 से pi by 4 के बीच में sin x is less than cos x, मतलब g डैश x जो होगा that will be greater than 0. और अगर g डैश x greater than 0 है तो फंक्शन gx क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है. नाउ g डैश x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो g डैश x को अगर आपको चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर, तो आप क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो, g डैश x को डिफरेंशिएट कर दो. तो नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस g डबल डैश x, so this will become minus sin x and this is minus cos x. So now you see this is equal to minus of sin x plus cos x, और ये जो होगा that will definitely be negative because sin x and cos x both will be positive from 0 to pi by 4. 0 से pi by 4 में दोनों पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, करेक्ट. मतलब g डबल डैश x नेगेटिव हो गया, g डबल डैश x नेगेटिव मतलब g डैश x फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में क्या है? gx प्लस g डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है. तो नाउ व्हाट इज gx फंक्शन? अच्छा हमने gx फंक्शन रिमूव कर दिया. व्हाट इज gx फंक्शन? लेट मी राइट इट हियर. gx फंक्शन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन, तो दिस इज cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटीग्रेशन माइनस cos x, so this is plus cos x और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये gx फंक्शन. अब gx प्लस g डैश x, तो gx प्लस g डैश x की अगर आप बात करें तो व्हाट इज gx प्लस g डैश x? दिस इज इक्वल टू या फिर हमको देखो gx फंक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज हमको gx प्लस g डैश x का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? g डैश x प्लस g डबल डैश x. अब इनका एडिशन देखो, आप ऑलरेडी यहीं से बोल सकते हो. व्हाट इज g डैश x प्लस g डबल डैश x? इनको ऐड करोगे, यू कैन सी cos x कैंसिल हो गया, दिस इज -2 sin x. अब -2 sin x 0 से पाई बाय 2 में हमेशा नेगेटिव होगा बिकॉज sin x हमेशा पॉजिटिव होगा. तो नेगेटिव मतलब दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस g प्लस g डैश x. इसका डेरिवेटिव इज दिस व्हिच इज ऑलवेज नेगेटिव. नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन डिक्रीजिंग मतलब ये ऑप्शन भी गया. मतलब आंसर तो डी आना है. अभी हम चेक कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है. gx माइनस g डैश x, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव विल बी g डैश minus g double dash. So what is the derivative of g dash? G dash is this cos x minus sin x. This is cos x minus sin x minus. अब इसमें से आपने इसका डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस sin x और ये प्लस cos x. So you can see ये भी कैंसिल हो गया. This is equal to 2 cos x. तो ये जो वैल्यू है this is 2 cos x और 0 से पाई बाय 2 में वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये
फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा बिकॉज इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल. मतलब व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था. फर्स्ट इंटीग्रेशन कैसे किया है, हाउ यू गॉट दिस gx फंक्शन, और उसके बाद तो फिर यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा ऑब्जर्वेशन होता है इंटीग्रेशन में, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, now let's take the next question. The question is let fx is equal to maximum of modulus of x plus 1 modulus x plus 2 mod so on modulus of x plus 5. Then you have to integrate minus 6 to 0 fx. You have to find this. ठीक है, तो देखो अब we have to find maximum, मतलब fx फंक्शन जो है वो maximum of these है, मतलब जो जिसका ग्राफ इन सब में सबसे ऊपर होगा वो मैक्सिमम होगा. करेक्ट. अब वो डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो नाउ थोड़ा एक रफ स्केच का आइडिया लेते हैं उसका. ठीक है, सो नाउ सी इफ आई स्टार्ट प्लॉटिंग अ रफ स्केच, थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं. दिस इज -1 -2 -3 -4 और ये -5. ठीक है, सो नाउ सी we know how to draw the graph of y is equal to modulus of x plus 1 x plus 2 modulus of x plus 3 modulus of x plus 4 modulus of x plus 5. ये हमको पता है. So now let's say if I draw the graph of minus y is equal to modulus of x plus 5. ये सिर्फ एक रफ आइडिया लेना है. ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया. किसका ग्राफ है? ये y is equal to modulus of x plus 5. सिमिलरली सेम लॉजिक से ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा x plus 4 मॉडुलस का, x plus 3 मॉडुलस, x plus 2 मॉडुलस और ये x plus 1 मॉडुलस. ये सब लाइंस पैरेलल है, ये सब लाइंस पैरेलल है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस ग्राफिकली. आपको पता है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, सो नाउ सी देखो जब आपको मैक्सिमम करना है तो ये सी हियर मैक्सिमम के लिए कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर होगा? तो x plus 5 नहीं, x plus 1 का ग्राफ, ये देखो x plus 1 का ग्राफ सबसे ऊपर होगा. फिर इधर जाओगे तो x plus 5 का ग्राफ कुछ ऊपर होगा. बराबर, x plus 1 सबसे ऊपर जाएगा ऐसे, और यहां से देखो ये x plus 5 सबसे ऊपर जाएगा. करेक्ट, बट वो किस पॉइंट पे चेंज होगा वो हमको चेक करना पड़ेगा. तो आप ध्यान से देखो. अब ये आपको मैंने आइडिया बता दिया है कि ये x plus 1 ये सबसे ऊपर रहेगा कुछ इंटरवल के लिए, और ये कुछ इंटरवल के लिए x plus 5 सबसे ऊपर होगा. बाकी का कोई रोल नहीं है इसमें. ठीक है, सो नाउ अब इन दोनों को मैं सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ. सो नाउ सी इनडायरेक्टली आपके पास सिर्फ दो ही ग्राफ हैं, -1 और -6 -5. ठीक है, -5. ठीक है, सो नाउ सी दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to modulus of x plus 5 and this is the graph of y is equal to modulus of x plus 1. अगर हम इनको सॉल्व करें तो you can get the point of intersection. You have to just solve this. Modulus of x plus 1 equal to modulus of x plus 5. तो you can clearly से आप डायरेक्टली देख के बोल सकते हो कि x is equal to -3 जो होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा. -3 पे ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा. करेक्ट है, तो मतलब -3 के बाद सब कुछ चेंज होने वाला है. कैसे? इफ x is between -3 to हमारा इंटीग्रेशन क्या है -6. ठीक है, -6 से -3 होगा तो दिस ग्राफ इज अबव, सबसे ऊपर ही होगा. जैसे आपने -3 क्रॉस किया तो ये वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. बाकी तो ग्राफ इनके बीच में रहने वाले हैं, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है. ठीक है, सो कैन आई डायरेक्टली से द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी -6 to 0 -6 to 0. विच ग्राफ इज अबव? दिस ग्राफ इज अबव. -6 to 0 नहीं, -6 to 3 -6 to -3. ठीक है, which graph will be above this graph? This is the maximum, मतलब modulus of x plus. फिर -3 से 0 तक, -3 से 0 तक which graph is above? This graph is above, मतलब modulus of x plus 5. This is modulus of x plus. That is the this is how we can integrate this. अब इसको इंटीग्रेट करना है तो वो इंटीग्रेट करना आपको पता है कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगेन यू कैन सी दिस इज -6 to -1. दिस इज x plus 1 with a negative sign dx.
फिर माइनस, अच्छा इस पर तो आपको ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो बिकॉज नाउ यू कैन यू नो। देखो अगर x -6 से -2 के बीच में, -3 के बीच में, तो ये वाली x+1 तो हमेशा नेगेटिव आएगा। और अगर हमेशा x+1 नेगेटिव है तो उसका मॉडुलस ओपन करोगे तो क्या होगा, दिस इज माइनस ऑफ x+1 dx, दिस इज -6 to -3। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। देन -5 -3 से 0 के बीच में अगेन यू कैन सी x+5 है, x+5 तो हमेशा पॉजिटिव होगा -3 से 0 के बीच में, यू कैन सी, क्योंकि आप -3 -2 -1 कुछ भी पुट करो हमेशा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये x+5 ही रहेगा। दिस इज सिंपली -3 to 0 x+5 dx। अब बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है, यू हैव टू गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दिस इज x+1 होल स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स आप पुट कर देंगे, दिस इज -6 to -3 प्लस दिस इज x+5 का होल स्क्वायर बाय 2, एंड अगेन यू विल पुट द लिमिट्स, दिस इज -3 to 0। तो नाउ फाइनल आंसर के लिए इफ आई पुट -3 हियर, ये 1/2 तो बाहर कर दो, इफ आई पुट -3 हियर दिस विल बिकम -2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस, जब आप -6 पुट करोगे दिस विल बिकम -6, दैट इज एक बाहर नेगेटिव साइन भी, ये बाहर नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये आ गया अपना 5 स्क्वायर दैट इज 25, दिस इज 25, और ये बाहर एक नेगेटिव साइन प्लस 1/2, ये 1/2, जब आप 0 पुट करोगे दिस इज 25, जब आप -3 पुट करोगे दिस इज 2 इसका मतलब 4, राइट। So what is the final answer? You can see this is 21, 21/2 plus 21/2 और ये 21/2, तो मतलब टोटल 21 आ गया। So what is the final answer? This is 21. This is 21/2. This is again you can see 21/2. So what is the final answer? This is 21. So I hope this is clear. मैक्सिमम कैसे फाइंड किया है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, जिसका ग्राफ अब है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हमने उसको इंटीग्रेट किया है, इनडायरेक्टली आपके पास इस दो ही फंक्शंस का रोल था, बाकी दोनों फंक्शन, बाकी जो फंक्शन थे इनके बीच में थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। आई होप दिस इज क्लियर, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। यप, so now let's take the next question. The question is that you have to integrate this function. This is 24 by pi integral 0 to √2 2 minus x square upon 2 plus x square अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स रेज टू 4, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। मतलब अब जस्ट ऑब्जर्व दिस, ठीक है। इसमें देखो प्रॉपर्टीज से तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टीज कुछ नहीं होगा, आपको मेनली इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो जस्ट ऑब्जर्व दिस कि कैसे हम कुछ डेरिवेटिव्स वगैरह बना सकते हैं, वो हमको सोचना होगा, ठीक है। आपने एक फॉर्म किया है, इस टाइप का फॉर्म आपने स्टैंडर्ड फॉर्म किया होगा, x स्क्वायर प्लस 1 एक्स रेज टू 4 प्लस x प्लस 1, ठीक है। इस टाइप के फॉर्म हमने किया है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप के फॉर्म के लिए क्या करते हैं हम, x रेज टू 4 की टर्म्स अगर है तो वी ट्राई टू टेक आउट सम कॉमन टर्म्स। तो अब देखो कैसे कर रहे हैं हम इसको, दिस इज 24 by pi 0 √2। If I take denominator में ध्यान से देखना, if I take x common from this, this is x 2 by x plus x, और यहां से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया 2 by x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व दिस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है दिस इज 1, और 2 by x स्क्वायर का x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 by x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 by x स्क्वायर, क्योंकि 1 by x का डेरिवेटिव -1 by x स्क्वायर। तो ये समझ में आ रहा है आपको, देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज को यूज करके आप देखो सेकंड जो टर्म स्क्वायर रूट में जो टर्म है, इसमें से अगर हम x रेज टू 4 बाहर लें, x रेज टू 2 बाहर लें, x रेज टू 2, so this will become x under root of 4 by x square plus this is x square. I hope this is clear. What we have done is we have taken x square common, so this is 4 by x square और ये x square, ठीक है। I hope this is clear, right? So now ये x square cancel होगा, this is dx, right? So this is 24 by pi under root of 0 to √2
2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 बाई एक्स प्लस एक्स। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका जो डेरिवेटिव है वो इस टाइप में आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव वगैरह हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका क्या करें, तो इसको भी आप ध्यान से देखो, दिस टर्म एंड दिस टर्म कैन बी वेरी इजीली रिलेटेड। कैसे? यू कैन सी हियर x प्लस 2 बाई एक्स, इसको अगर हम t अज्यूम करें, x प्लस 2 बाई एक्स को t अज्यूम करें, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको भी मैं लिख के दिखाता हूं। दिस इज, एक काम करो पहले इसको स्क्वायर करके देखिए, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। तो यू कैन सी हमने स्क्वायर कर दिया, तो यू कैन सी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 4, टी स्क्वायर माइनस 4। तो यू कैन सी आई कैन राइट दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 बाई एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो टर्म था उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, तो नाउ यू सी, अब आपको समझ में आ गया है। दिस इज if I take x plus 2 by x is equal to t, this will become 1 minus 2 by x square dx, this is equal to dt, right? अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज 24 by pi इंटीग्रल, ठीक है। लिमिट्स पे आप फोकस करें, तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा, ध्यान से देखो x इज इक्वल टू 0 पे t का वैल्यू क्या होगा, x जैसे आपने 0 पुट किया, दिस इज 0, 2 by 0 विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये 0 ऊपर 0 प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 0 से √2 मतलब 0 प्लस प्लस इन्फिनिटी। जब आपने √2 पुट किया, यहाँ पे आपने √2 पुट किया, x इज इक्वल टू √2, तो दिस विल बिकम √2 प्लस 2 बाई √2, तो ये भी √2 हो गया, मतलब दिस इज 2√2, तो द अपर लिमिट विल बिकम 2√2। आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। अब t में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बिकम माइनस dt, तो दिस इज माइनस माइनस बाहर कर देते हैं, दिस इज dt अपॉन दिस इज t, ये t अंडर रूट ऑफ नाउ व्हाट इज दिस इज t स्क्वायर माइनस 4। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। t स्क्वायर माइनस 4 कैसे आया, यू कैन सी चेक दिस इज 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4, ठीक है, माइनस 4। नाउ हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान से देखो फिर से। तो नाउ वी नो, ये कुछ इस टाइप का फॉर्म नजर आ रहा है, देखो दिस इज, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि व्हाट यू कैन डू इज, इसमें अब जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन t को अगर हम 2z पुट करते हैं, 2z, तो दिस विल बिकम dt इज इक्वल टू 2dz। अब why I am doing this, तो आपको भी समझ में आएगा, दिस इज माइनस 24 बाई पाई, राइट। दिस इज लोअर लिमिट, t जब 0 होगा, इंफिनिटी होगा, तो z भी इंफिनिटी होगा। t जब 2√2 होगा, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2, यू कैन सी दिस इज √2, तो दिस इज √2, दिस विल बिकम 2dz अपॉन व्हाट इज दिस इज 2z, this is under root of 4z square, 4z square minus 4। I hope this is clear. So now you can just take the common, जो भी common वगैरह है वो ले लेते हैं। So this will become, अब हम यहाँ लिखते हैं this is integral। अब देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव को हमने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो नेगेटिव निकल जाएगा, दिस इज, ये 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 4 कॉमन, so this will become 12 बाई पाई, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन निकला, 2 बनेगा, 24 बाई 2 12 हो गया, नेगेटिव को हमने लिमिट को इंटरचेंज करके लिमिट नेगेटिव निकाल दिया, दिस इज इंफिनिटी, सॉरी दिस इज √2 टू इंफिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर। अब दिस फंक्शन विल बिकम dz बाय z अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस 1, and now this is the standard result. What is the integration of 1 upon z square minus 1, this is sec inverse z, correct। sec inverse x का फॉर्मूला क्या, डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, तो ये उसका इंटीग्रेशन हो गया, तो दिस इज, तो अब फाइनली जो रिजल्ट आया, दिस इज 12 बाई पाई sec inverse z,
और लिमिट्स क्या है, नाउ वी कैन पुट द लिमिट्स √2 और ये इंफिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये √2 और इंफिनिटी हमने लिमिट्स पुट कर दी। अब वैल्यूज लिख देते हैं। तो दिस इज 12/pi sec inverse infinity. What is sec inverse infinity? Pi/2 minus this is sec inverse 1√2. Sec inverse √2 will be 1/pi/4. This is pi/4. So what is the answer? This is 12/pi into pi/4. This is cancel. This is 3. So the final answer will be equal to 3. So I hope this is clear. एक बार आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन हमने कैसे किया है। आप यहाँ पे जो ये वाला जो स्टेप है उस पर आप थोड़ा फोकस कीजिए, बिकॉज ये यहाँ पे थोड़ा सा कई बार स्टूडेंट्स को मिस्टेक प्रॉब्लम हो जाता है कि अब इसको क्या करें, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली इंटीग्रेट दिस। सो आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। Now let's take the next question. The question is, you have to find the integral -2 to 2 modulus of x cube plus x upon e raised to x modulus x plus 1। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट थॉट क्या होगा, देखो भाई माइनस ए से प्लस है, तो हमारा फर्स्ट थॉट रहता है कि ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन। अगर ऑड इवन होगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं, बट यू कैन क्लियरली सी ये फंक्शन तो इवन फंक्शन है, बट ये दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड, करेक्ट। एक्स को माइनस से रिप्लेस करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड इवन तो नहीं लगेगा, ठीक है। But if you just observe this, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, again using the properties of integration, you see this is -2 to 2 x cube plus x modulus upon e raised to x modulus x plus 1 dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन, करेक्ट। Now if I apply the king property, x goes to a plus b minus x, that is if I apply x goes to a plus b क्या हो गया 0 minus x by King's बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, x गोज टू a प्लस बी माइनस। तो इनडायरेक्टली आपने क्या किया, इनडायरेक्टली हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस x से। तो इंटीग्रेशन रिमेन सेम। तो जैसे आप इसको पुट करोगे दिस विल बिकम i, लिमिट्स विल बी सेम -2 to +2। x को माइनस से रिप्लेस करोगे ये -x³ बनेगा, ये -x बनेगा, बट मॉड्यूलस है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ x³ प्लस x डिवाइड बाय, यहाँ पे पुट करोगे दिस इज e रेज टू -x और मॉड्यूलस ऑफ -x सेम एज x मॉड्यूलस x, दिस इज प्लस dx, करेक्ट। एंड नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, दिस इज -2 to +2। अगर हम इसका एलसीएम ले लें दिस विल बिकम मॉड्यूलस ऑफ x³ प्लस x, करेक्ट। मॉड्यूलस ऑफ x³ प्लस x e रेज टू x मॉड्यूलस x अपॉन 1 प्लस e रेज टू x मॉड्यूलस x dx। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, करेक्ट। यू कैन सी दिस। नाउ सी इफ आई ऐड दीस टू, जैसे हम इनको ऐड करेंगे, किंग्स प्रॉपर्टी जनरली हम ये ऐसे ही अप्लाई करते हैं, दोनों किंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया उसके बाद ऐड करके देख लिया। तो दिस इज 2i will be equal to integral -2 to +2 -2 to +2। जस्ट ऑब्जर्व दिस, जैसे आप इनको ऐड करोगे तो यू कैन सी हियर डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस e रेज टू x मॉडुलस x। न्यूमरेटर में देखो ये जो टर्म है x³ प्लस मॉडुलस x³ प्लस x मॉडुलस वो कॉमन आ जाएगा 1 प्लस e रेज टू x मॉडुलस x। तो कैन आई से दिस विल बी सिंपली इक्वल टू x प्लस x³ मॉडुलस। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाला जो टर्म होगा वो कॉमन आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, आप ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हियर, अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है बिकॉज नाउ दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, दिस इज एन इवन फंक्शन मॉडुलस ऑफ x प्लस x³। x को माइनस से रिप्लेस करोगे माइनस x³ आएगा, मॉडुलस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दिस इज 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 2 मॉडुलस ऑफ x प्लस x³ dx। ये 2 कैंसिल हो गया एंड नाउ अब x तो अगर पॉजिटिव है 0 से 2 मतलब पॉजिटिव नंबर, तो x प्लस मॉडुलस x³ हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मॉडुलस को भी रिमूव कर दो डायरेक्टली, दिस इज 0 to 2 x प्लस x³। और अब बस आंसर लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू x²/2 प्लस x रेज टू 4/4 और लिमिट्स क्या है 0 to
आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ फाइनल आंसर के लिए बस लिमिट पुट कर दो. सो व्हाट इज द आंसर? x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, दिस इज 4/2. x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे 16, 2 रेज टू 4, 16/4. बाकी 0 पे तो 0 हो ही जाएगा. सो दिस इज 2, दिस इज 4. So final answer will be 6. Option D will be the answer for this. So again you can see how we have solved this question. पहले हमने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया, देन हम थोड़ा इवन ऑड यूज कर ले ताकि आपको ये मॉडुलस को सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा. ठीक है. So I hope this is clear. So that's it for this question. Great. Thank you.